Swamini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Aschachadeshatarane Vansha Kalpatubhischa Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gurmukam Karoti Vachalam Angam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram. Hare Krishna. Please accept my most humble obeisances and thank you all for joining today. Madhav Charan Prabhu, thank you so much for having me with the Rupanuga Vidyapit for this auspicious occasion. Hare Krishna Maharaj, we are very grateful to Your Holiness for accepting our request and taking out time to glorify His Holiness Loknath Swami Maharaj. So we have devotees from different parts of India and abroad, Maharaj. So whatever Your Holiness says, I mean, shall we go ahead in English or Hindi translation? As you like, Prabhu. We'll ask maybe the devotees. आप में से कितने भक्त हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो आप एक बार हैंड रेज कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करें. Oh, we have many devotees. Okay, so we have Swarup Siddha Prabhu with us. So Prabhuji will do the simultaneous translation, Maharaj. Badhiya. Thank you. Hare Krishna. Okay, good. So I would like to share one beautiful verse from Nectar of Instruction by Srila Rupa Goswami. हरे कृष्ण महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस. महाराज बता रहे हैं कि अभी मैं उपदेशामृत से एक बहुत ही सुंदर श्लोक आपके सामने साझा करूंगा. So this is Nectar of Instruction, text number 5. तो ये श्लोक संख्या 5 है उपदेशामृत का. Krishneti yasya giritan manasadriyeta dikshasti chat pranati bischa bhajantam isham shushushaya bhajanam vignam ananyamanya nindhadi shunya hridam ipsita sangha labda. One should mentally honor the devotee who chants the holy name of Lord Krishna. तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक को मानसिक रूप से जो उनको प्रणाम करना चाहिए जो भगवान का नाम का जप करते हैं. One should offer humble obeisances to the devotee who has undergone spiritual initiation, diksha. और जिन्होंने दीक्षा ले लिए है उनको प्रणाम करना चाहिए, विनम्र प्रणाम करना चाहिए. And is engaged in worshipping the deity. और वो जो हैं जो भगवान की सेवा में भी लगे रहते हैं. And one should associate with and faithfully serve that pure devotee who is advanced in undeviated devotional service. और जो भक्त जो भगवान की सेवा में जो है लगे रहते हैं और जो उच्च स्तर पे पहुंच चुके हैं, जो कि कभी विचलित नहीं होते हैं, उनका संग करना चाहिए. And whose heart is completely devoid of the propensity to criticize others. और जिनके हृदय में किसी के प्रति भी निंदा का कोई भाव नहीं है. So here we see a description of the most advanced devotee, that they're advanced in undeviated devotional service. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से कि जो
उन्नत भक्त होते हैं वो किस प्रकार से उन्नत कहलाते हैं, जब वो भक्ति भाव जो उनकी सेवा है उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है, and whose heart is completely free from the propensity to criticize others. और जिनके हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है बिना किसी के प्रति निंदा के। So, the word bhajana vignam is used. Bhajana vignam means one who is advanced in devotional service. तो यहाँ पर एक शब्द है जिसका जो है भजन विज्ञम, तो इसका मतलब है जो कि भक्तिमय सेवा में उन्नत है। So, vigyam is like gyan, it means to know. तो विज्ञ का मतलब ज्ञान होता है अर्थात जानना, And bhajan means worship of the Lord. So, one who knows how to worship the Lord with knowledge is bhajana vignam. और भजन का मतलब होता है जो भगवान का भजन करता है। तो जो भगवान का भजन करता है ज्ञान के साथ वो भजन विज्ञम कहलाता है। And not only they're knowledgeable about devotional service, but their seva is ananyam. It's without deviation, without any stop. उसका सिर्फ जो है कैसे सेवा करने उसका ही उसको बोध या ज्ञान नहीं होता है, उसको जो है अनन्यम अर्थात बिना किसी विक्षेप के। And also they are anya ninda adi shunya. They are shunya means zero, and ananya ninda adi means blaspheming of others. So they have shunya, zero, sadhu ninda. तो जैसे कि इसमें दिया गया अनन्य निंदा आदि अर्थात किसी के प्रति कोई भी प्रकार के निंदा और आगे। And their rhythm, their heart is ananya ninda adi, free from the propensity to criticize others. Hare Krishna. Hare Krishna, can you hear me? Hare Krishna. Yes, Maharaj, your voice is coming. Maybe Swarup Sid Prabhu has left, maybe. He's not available. Acha. So that's fine. Can someone else continue the translation, Seva? He's back, Maharaj. Okay. Very good. Please continue. Yeah. So the advanced devotee, सॉरी महाराज गुड। the advanced devotee's heart is free from the tendency to criticize others. तो जो है एडवांस कैसा कोई भी उन्नत कैसे बनता है कोई भी भक्त जब वो दूसरों के प्रति निंदा उसकी खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है। Now, what should our mood be when we come in contact with such devotee? तो जब हम ऐसे उन्नत भक्त के संपर्क में आते हैं तो एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए? Ipsita sangha labdha. We should desire the association of such a devotee. तो इसमें दिया गया है इप्सिता संघ लब्धा। तो हमारी इच्छा कैसे होनी चाहिए? हमारे अंदर ऐसी इच्छा आनी चाहिए कि कैसे मैं ऐसे उन्नत वैष्णवों का संग कर सकूं। And shushushaya, we should offer service to such a personality. और उसके उपरांत क्या करना चाहिए? शुश्रूषया, हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। So we see these qualities in the life of His Holiness Lokanath Swami Guru Maharaj. तो ये ऐसे दिव्य गुण हम अपने गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज के अंदर भी हम पाते हैं। He's very advanced in devotional service. वे भक्ति में उन्नत हैं। He's very expert in puja
in kirtan, in engaging devotees in devotional service. तो वो काफी दक्ष हैं भक्तों को सेवा में लगाने के लिए, लगाने में, पूजा करने में, और साथ ही साथ संकीर्तन में भी। And he's very advanced in inspiring devotees to perform service. और साथ ही वे काफी दक्ष हैं दूसरों को प्रेरित करने में ताकि कैसे सेवा की जाए। Whenever I meet Guru Maharaj, I always feel more inspired to serve more and more. महाराज अपने व्यक्तिगत उदाहरण दे रहे हैं। जब भी मैं महाराज से मिलता हूँ, महाराज मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं कि कैसे मैं And I और don't अच्छे से सेवा कर सकूं। and Ananya Ninda Adi, I don't hear him shunya. I don't hear him criticizing and blaspheming others. किसी भी प्रकार की ये चीजें नहीं सुनता हूँ कि वो कभी मैंने सुना हो उनको किसी भी प्रकार की किसी की निंदा करते हुए। वे पूर्ण रूप से शून्य है। Jai. So these are some of the qualities that I have noted in the life of His Holiness Lokanath Swami Guru Maharaj. तो ये दिव्य गुण जो है मैंने महाराज के जीवन चरित्र में देखे हैं। And thus I seek to offer my services to him. इसलिए मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। And I relish his association when I have the opportunity. और जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता है, मुझे बहुत ही आनंद आता है उनका संग करने में। So I'd like to stop here and ask if devotees have any comments or questions for me. तो महाराज कह रहे हैं मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और साथ ही मैं जो भक्त यहाँ पर हैं उपस्थित हैं उनसे जो है निवेदन करूंगा, अगर उनका कोई टीका टिप्पणी है या फिर कुछ प्रश्न है तो वे अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ हैंड रेज्ड ऑलरेडी थे, आई विल डाउन देयर हैंड। ओके, तो जो भक्त अगर किसी भक्त का किसी प्रकार, यस प्रभु, यू आर partially audible. Okay, so Maharaj, I have one question. When Yes. you are supposed to take sannyas, when you are supposed to take sannyas diksha, and your sannyas was delayed by 1 year, you approached Guru Maharaj, and Guru Maharaj says you to meditate on His grace, His holiness, and His divine grace. तो प्रभु जी का Can you share प्रश्न that है, moment? ऑलराइट, तो माधव चरण प्रभु का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है उन्होंने कि महाराज जब आपका संन्यास दीक्षा होने वाला था लेकिन किसी कारणवश उसको 1 साल और विलंब हुआ, तो उस समय जब महाराज गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज ने उनको बताया कि आप चिंतन करो परम जो हिज ग्रेस का और हिज डिवाइन ग्रेस का। तो प्रभु जी जानना चाहते हैं क्या वो पल हमारे साथ साझा कर सकते हैं जब इस प्रकार का ये चीजें हुई। Yes, Guru Maharaj was inspiring me to meditate on both the mercy of Srila Prabhupada and the mercy of Guru Maharaj. तो महाराज बता रहे हैं कि उस समय जो है गुरु महाराज को प्रेरणा कर रहे थे कि आप चिंतन करो किसका, शिल प्रभुपाद का और उनके अपने आध्यात्मिक गुरु का। All ISKCON devotees have a relationship with Srila Prabhupada. जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं उन सभी का शिल प्रभुपाद से एक विशेष संबंध है। Srila Prabhupada is ISKCON's founder acharya. शिल प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। And of course, I have a special relationship with Guru Maharaj since I've known him practically the entire time I've been in ISKCON. तो जब से मैं गुरु महाराज को जानता हूँ, उनके संपर्क में आया हूँ, मेरे महाराज के साथ बहुत ही विशेष संबंध है। Just like a family doctor. जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का एक जो पारिवारिक डॉक्टर होता है। He knows you your whole life. जिस प्रकार से डॉक्टर आपको सही से ठीक ठाक जानता है, उसी प्रकार से। So Guru Maharaj was sharing with me, Utsaha, Nischayat, Dharyat. Enthusiasm, determination, and patience would allow myself to be successful. तो गुरु महाराज जो है महाराज को उस समय बता रहे थे उत्साह, निश्चय, धैर्य,
कि उत्साह रहो, निश्चय हो और धैर्य बनाए रखो। Jai. Thank you, Prabhu. Does that answer your question? Thank you, Maharaj. Jai ho, Jai ho. तो ये कितना सुंदर प्रश्न था महाराज की जीवनी के ऊपर। इसी प्रकार से और भक्तों से निवेदन है, कृपया करके ऐसा अपॉर्चुनिटी, ये अवसर, दुर्लभ अवसर बार बार नहीं मिलता है जब हम इतने बड़े, इतने विशेष समय पर हमें महाराज से कुछ पूछने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट पीपल, डिवोटीज, इफ दे रेज देयर हैंड्स एंड आस्क महाराज any questions. Maharaj is, has very limited time, so devotees are requested, please grab the opportunity. Okay, one Mataji is raising her hand. I'll unmute you. हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, आप बताइए, जैसे गुरु महाराज के साथ आपके कोई भी इंसिडेंट जो आपको बहुत ही मतलब दिल को चुभ गया या कैसे, मतलब हृदय तक, है ना, तो कोई भी गुरु महाराज का ऐसे कुछ आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसे कुछ बताइए, और बताइए, हमें सुनना चाहते हैं। Maharaj, she really like the way you glorified Maharaj's presence. So she wants to have some more memorable moment which touched your heart and you still remember those moments. So she wants to know more such memories. I remember one time Guru Maharaj and I were traveling together in London. तो मुझे एक बहुत ही विशेष समय स्मरण हो रहा है जब मैं और गुरु महाराज लंदन में थे। Every Saturday night there's Maha Harinam and about 200 devotees had come. तो उस समय प्रत्येक शनिवार को एक बहुत ही विशाल महा हरिनाम हुआ करता था जिसमें 200 से अधिक भक्त उसमें भाग लेते थे। There were 5 or 6 mridangas. उस संकीर्तन में 5 से 6 मृदंगा रहते थे। And the kirtan was about to start. और जैसे ही कीर्तन शुरू होना वाला होता था, And Guru Maharaj was asked to lead the kirtan. और गुरु महाराज को पूछा जाता था कि क्या आप कीर्तन लीड करेंगे? So Guru Maharaj reached for the microphone. Guru Maharaj तो महाराज reached जो for है the माइक्रोफोन पकड़ते थे, but there was no microphone. तो गुरु महाराज माइक्रोफोन जो माइक होता है उसको पकड़, परंतु उस समय Devotees forgot to bring माइक्रोफोन the नहीं sound रहता था। system. भक्त जो है भूल गए थे साउंड सिस्टम को लाना। So Guru Maharaj continued and led kirtan for more than 2 hours throughout London with 5-6 mridanga players, 200 devotees and no microphone. तो महाराज ने बिना किसी माइक, बिना किसी स्पीकर के अगले 2 घंटों तक संकीर्तन किया 200 से अधिक भक्तों के साथ, 5 से 6 मृदंगों के साथ। अमेजिंग। I think Guru Maharaj is the only person I know who could do this. और जहां तक मुझे ज्ञात है कि गुरु महाराज ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ये अद्भुत कार्य कर सकते हैं। So this is Bhajana Vignan. He's expert at bhajan, expert at devotional service. तो ये जो है भजन विज्ञ है, महाराज दक्ष हैं ऐसी भक्ति में सेवा करने में। Param Puja Lokanath Swami Guru Maharaj ki jai. जय। It was amazing, Maharaj. I never heard this incident before. For me also, this is very memorable and unforgettable. Thank you. और भी भक्त हैं बहुत सारे। We have so many devotees here. सभी से निवेदन है कृपया करके अपने प्रश्न जरूर रखें और महाराज के साथ महाराज के जाने से पहले अपने इतने सुंदर प्रश्नों को लेकर के आइए ताकि महाराज को और थोड़ी देर हम रोक सकें। Maharaj, Yes, Prabhu. so 2 points from my side again. The first one is, once I heard you lost your bead bag. Oh, your bead. Not bead bag, bead. And you approached Guru Maharaj. Maharaj gave me the another bead.
And Maharaj said, "You tell me your 4 regulative principle." And you speak normal 4 regulative principle. And then Maharaj said, "There's a fifth one for you. Tell me the fifth regulative principle that you will never leave ISKCON." Can you repeat that incident? That is the first point. And second point, honestly, Maharaj, we are here. It's just like Chaitanya Lila. The relation between the devotees always releasing. So we just want to hear, as you mentioned here, Guru Maharaj is just like your family doctor. And we all are witnessing and seeing that, he make one good patient. You are the best creation of his doctrine or his achievement. So Maharaj, can you share more and more points? We can release for another 2 or 3 days. We keep thinking about Maharaj and your glorious service to him, you. This incident you mentioned where I had lost my beads, I had approached Guru Maharaj तो with जो some new beads. तो एक घटना महाराज के साथ घटी थी, जब महाराज अपनी जो है जप माला कहीं खो दिए थे, और जब महाराज ने ये सूचना गुरु महाराज को दी कि मैं अपनी जप माला को कहीं भूल गया हूँ, So I went to Mayapur, I bought some really big size beads. और महाराज बता रहे हैं कि वे मायापुर जाते हैं और बहुत ही बड़े आकार की जो है बीड्स को लेकर के आते हैं. They were really big. बहुत बड़े आकार था उनका. Like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. काफी बड़ा आकार था उन बीड्स का, उन मोतियों. Then I approached Guru Maharaj in the Kumbh Mela. तो उस समय कुंभ मेला का समय था, तो मैं महाराज को कुंभ मेला में महाराज से मिला. In Prayag. प्रयागराज में. Yes, प्रयागराज में मिला. And Guru Maharaj was sitting in the tent with His Holiness, what was his name? The scientist, Swarup Damodar. स्वरूप दामोदर. Yes. तो महाराज उस समय जो कुंभ मेला के इस्कॉन के टेंट में थे, परम पूजनीय स्वरूप दामोदर महाराज के साथ. And Guru Maharaj had my new beads. और गुरु महाराज के पास मेरी जो नई जप माला थी वो थी. So Guru Maharaj pulled out the beads. Guru Maharaj beads na jap mala, japa bag na kalna. And then Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he spoke. Maharaj, could you repeat this? I lost my internet, so I couldn't catch you. Guru Maharaj pulled the beads out of the bag. तो महाराज ने जब बीड्स थी उनको बैग से बाहर निकाला. And he said, repeat the 4 regulative principles. तो गुरु महाराज ने महाराज से कहा कि जो 4 नियम है उनको दोहराओ. And then he said, you have to promise one additional principle. Never leave ISKCON. और महाराज ने जब ये 4 जो है ये नियम सुनाए, तो गुरु महाराज ने महाराज को कहा कि मुझे वचन दो कि आप जिंदगी भर ISKCON को नहीं छोड़ोगे. Yes. So I agreed. I promised. तो मैंने अपनी भरी. And then Guru Maharaj gave me my new महाराज bead. को वचन दिया कि मैं स्वीकार करता हूँ. Yes. तो इस प्रकार गुरु महाराज ने महाराज को नई जप माला दी. Amazing. I'd like to share one more story that comes to my mind. तो अभी मेरे मन में एक और नई कहानी, एक लीला, एक दृश्य और आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. And the story is that I was in Mayapur having a morning walk with Guru Maharaj. We walked from the Conch building to Prabhupada's Bhajan Kutir near the front gate. तो ये समय उस समय का है जब मैं मायापुर में महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पर था,
और हम जो है काउंसिल जो हम बिल्डिंग है वहां से हम जा रहे थे लोटस बिल्डिंग की तरफ। And when we reached Prabhupada's Bhajan Kutir, I said, Guru Maharaj, your disciple, Sankirtan Prabhu, is approved for sannyas. Congratulations. I'm so happy. तो जब हम क्षमा कीजिएगा प्रभुपाद भजन कुटीर की तरफ जा रहे थे, तो जब हम वहां पहुंचे तो मैंने गुरु महाराज को पूछा कि महाराज आपका जो शिष्य संकीर्तन प्रभु हैं उनको संन्यास मिनिस्ट्री से संन्यास के लिए उनको स्वीकार किया गया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। And Guru Maharaj said, what about you? तो महाराज मुझसे पूछे कि आपका क्या? And he said, you should go and submit your application to the sannyas ministry. तो महाराज ने मुझसे कहा कि आपको जो है अपनी संन्यास का जो ये निमंत्रण है या संन्यास की जो अर्जी है संन्यास मिनिस्ट्री को देना चाहिए। So then I filled the forms and same day I submitted the application. तो मैंने ये जो है ये प्रार्थना पत्र या अर्जी भरी और मैंने इसको जो है संन्यास मिनिस्ट्री को भेजा। Jai Param Puja Lokanath Swami Guru Maharaj ki Jai. जय। Let's take one more question, then I have to go. I have to chant 10 rounds and I have big day tomorrow. Rath Yatra in Delhi University. ओके, सो हम अंतिम प्रश्न लेंगे क्योंकि महाराज का कल बहुत ही विशेष दिन होने वाला है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में रथ यात्रा है, महाराज को इसमें भाग लेना है। वी हैव गॉट आवर डिवोटी। ओके, आकाश रघुवंश प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रघुवंशी प्रभु जी, थैंक यू Yes, प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। Maharaj, sorry for this question. Actually, this question is not something for which everyone has joined here. This question is regarding some like technical scripture, but I am like really struggling with this. So whenever I reach to any senior devotee in my nearest temple to ask this question, they say like, if you ask this question, how will it increase your say increase your like consciousness in seva? How your seva consciousness will increase by asking these questions? But I think if these my questions like Maharaj, in scripture if something is mentioned, and in today's modern science, if it discovers something which matches which is already mentioned in the scriptures, it increases our firm faith in scripture, and like it increases firm faith. I'm struggling with this question, so I'll just proceed with the question, Maharaj. So like in scripture this is mentioned that the distance between earth and sun, so and in modern science whatever they have come up with, the distance between sun and earth, it matches, so it increases my firm faith personally speaking. But there are particular things which I have read in Prabhupada books, specifically in Srimad Bhagavatam it is mentioned, and Prabhupada also explains this in purport. I'm sorry for this, I have not written down the exact shlok number, like canto chapter and shlok number, those I have not mentioned like noted down here. But it is like they say that in this universe, each and every planet like Chandralok, Suryalok, everywhere beings are there. But when this modern science they send devices or people to moon, they do not see people there. So if for this particular scenario, if we think that those are celestial beings, and uh, and the like buildings or whatever mahal are there, they are like celestial and not perceivable by material senses. If this is the explanation, Maharaj, then I have one or 2 points more, uh, which is like Maharaj, in Srimad Bhagavatam it is mentioned the distance, like sun is more closer to earth compared to moon. But modern science clearly says that like moon is closer, but sun is far away from earth. And one last example which I have noted down, which I read in Srimad Bhagavatam, which is like Maharaj, there is only one sun in the entire planet and one moon. Like this, Vivaswan is placed. This is like a post. Surya Dev post, Chandra Dev post. Only one post is there in one particular universe for Surya. And Prabhupada also writes that.
so one Surya is there which enlightens entire universe with its sunlight, and similarly only one moon. But modern science says that there are multiple moons. Even there is one moon near different planets. So, like Maharaj, just wanted to ask this question because like I'm this troubles me this question, Maharaj. Just wanted to uh, ask this. Like I'm struggling with this from a long time when I Ma- read Ma- it. Mara, should I summarize it or you have Yeah, you yeah, want you to can. answer now? Yeah, you can So, summarize. okay, so first I'll speak in English. So Prabhuji had a doubt which he has been asking for, but always doesn't get the right answer. And also, whenever he asks for, devotee says that is it logical and how it will help you in devotional service. So he has Maharaj question. First question is when the scriptures and science both give the same information, the conviction of devotee that increases that yes, our scriptures are right, they are giving right information. So he was giving one example of the distance between sun and earth. It is mentioned in scripture, and also scientists believes the same, but there are some incidents which always gives him more doubt. The first one he was asking for Maharaj, like we read in Bhagavatam, and Srila Prabhupada also mentions in different planets there are living entities which are called celestial. But whenever scientists sends any this rockets and all, do not find any such thing. So how come it is that they are unable to find these celestial, palaces or people? As we also know that this is not conceivable through our materialistic senses or materialistic eyes. So it was his first question. Second was he was asking that uh, we know that moon is closer to Earth as per scripture, sorry, as per scientists. But Cyril Prabhupada also mentions moon is not close to Earth, but sun is closer to Earth. So he wants to clarify these two things. और हमारे हिंदी भाषी जो हमारे भक्त है उनके लिए प्रभु जी जानना चाहते हैं कि जब हम जैसे कई सारे यहाँ पर होंगे साइंस स्ट्रीम से, तो जब हम साइंटिफिकली आध्यात्मिकता को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा शास्त्र के प्रति और विश्वास के अलग अलग ग्रहों पर जो है उसमें लोग रहते हैं, वहां पर कुछ निवासी रहते हैं, लेकिन वहां पर सैटेलाइट भी हैं। तो ये दिखा। दूसरा उनका प्रश्न है कि जो है साइंस की चंद्रमा है, चंद्रमा है, शिला भागवत में कहते हैं कि जो सूर्य है तो I'm about to go offline. I'm trying to answer one more question, but the speaker cut, some internet issues. Not with me, I think, with somebody else. I'm living in Ashram. Okay. Maybe see you tomorrow afternoon, maybe not, right? No. In the afternoon or in the evening, I'll show you. come. Thank you so much. Actually, It's a great day, huh? yeah, it was great. Especially, both the classes were like extraordinary. This. Back to back extraordinary classes. And the time we spent also
हरे कृष्ण भक्तों, तो जब तक महाराज हमारे बीच आते हैं, तो जो मुझे सेवा मिली है, तो आप सभी से निवेदन है। ओके, महाराज इज देयर नाउ। Jaya. महाराज हरे कृष्ण महाराज। Yeah. Hare सॉरी Krishna. महाराज, माय इंटरनेट इज स्ट्रगलिंग। सो Yeah. महाराज, would you like to Uh, answer this question? okay. Yeah. We can try to understand something. Okay, महाराज। So, one point is that, first of all, I'd like to thank Prabhu for asking so honestly this question. These तो पहले questions, तो मैं प्रभु जी का, हाँ, इसमें these questions are not wrong. तो मैं पहले तो आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने ये प्रश्न पूछने की जिज्ञासा की। ये कोई गलत प्रश्न नहीं है। We should study these topics very patiently. तो हमें बहुत ही धैर्यता पूर्वक ऐसे जो विषय वस्तु है उनको पढ़ना चाहिए। We should not lose faith. हमें जो है कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, Or try to give some quick explanation. और कोई जो है तुरंत मिलने वाला सुझाव नहीं देना चाहिए, These are very subtle topics. क्योंकि ये ऐसे विषय वस्तु काफी सूक्ष्म होते हैं। So Srimad Bhagavatam describes not only physical distance, but also the subtle reality. तो श्रीमद् भागवतम जो है सिर्फ इसके बीच के जो फिजिकल जो डिस्टेंस है वो नहीं बताता है, परंतु जो वास्तविकता है उसको भी बताता है। Bhagavatam talks about karma. And Bhagavatam talks about the demigods, Swargaloka. I think we should postpone this discussion. It's too difficult with the poor internet connection. I'm sorry, Maharaj. It was unexpected for me too, because this is really giving a lot of trouble. Yeah, I think we can come back to this question. It's a very deep question. It requires a lot of time and to address it. Could be take a whole session to address this question. And this is mostly session was for glorification of Guru Maharaj. So what I could suggest is let's come back to this session in a question in a future session. And really, I need to leave now, but I suggest you carry on with the other devotees, facilitate them, and ask them to share their realizations. जो अभी प्रश्न, ओके, तो महाराज बता रहे हैं हमारा पत्र है वो So thank you very much for your kind association, and और जो looking forward आज to का seeing अच्छा some था of you प्रभु जी के in, ये and काफी looking forward to इसके लिए seeing some पूरा of you एक in अलग था। Pandharpur. तो में से कोई भक्त जो है, आप में से कोई भक्त जो है, महाराज भी यहाँ पर बने हैं कि कुछ अपना जो है आत्म साक्षात्कार या महाराज का गुणगान कर सकते हैं, गुरु महाराज का।
Looking forward to seeing this. Okay. Jai. Maharaj is personally giving us invitation. I have to leave. Thank you so much, Maharaj, for giving your such a wonderful divine presence. I'm really sorry from my side that it really you for facing this. महाराज चाहते हैं कि हम आप लोग पंढरपुर आए और महाराज काफी प्रसन्न होंगे कि अगर हम पंढरपुर में महाराज परम पूजनीय श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज की Srila परम पूजनीय Prabhupada, गुरु महाराज की जय शिल प्रभुपाद की जय thank you. Hare Krishna. साथ ही थैंक यू सो मच महाराज फॉर योर डिवाइन प्रेजेंस महाराज और हम सभी भक्तों को से क्षमा चाहता हूँ कि इंटरनेट काफी ट्रबल दे रहा है आप में से कई सारे भक्तों के महाराज के साथ कई सारे साक्षात्कार होंगे जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर भक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से भक्त जुड़े हुए हैं और महाराज ऐसा कोई भी नहीं हम में से जिसके साथ महाराज के पर्सनल ऐसे व्यक्तिगत अनुभव ना हो तो अगर आप में से कोई जो है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को यहाँ पर साझा करना चाहता है क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है आप जरूर किसी सेंटर से या किसी मंदिर से जुड़े हुए हो लेकिन जिस दिन महाराज का ग्लोरिफिकेशन होता है उस दिन आपके ही मंदिर के या आपके ही समूह के लोग आपको सुन पाते हैं और यहाँ पर एक ऐसा सो अवसर है जहाँ पर आपको सुनने के लिए कई अलग अलग क्षेत्रों से राज्यों से आपको सुनने के लिए काफी उत्सुक हैं तो आप में से कोई भक्त जो है ऐसा साक्षात्कार गुरु महाराज के साथ सुनाना चाहता है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं और जो है महाराज के साथ जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है या फिर जो है कुछ आप सुनाना चाहते हो तो जरूर हमारे इस फोरम को सुना सकते हैं के माध्यम से आप ये बता सकते हैं ओके वन माता जी इज रेजिंग हर हैंड यस माता जी कंटिन्यू एक और आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या कैन यू रेज योर हैंड अगेन हरे कृष्णा ओके नाउ अनम्यूट कीजिए माता जी लुधियाना से जो है हरे जी माता कृष्णा जी हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी धन्यवाद प्रणाम थैंक यू दंडक सो प्रणाम मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच मेरा यही है कि एक तो एक बार जैसे गुरु महाराज हमने सुना है कि वो है ही करुणा के सागर है ना उनमें इतनी करुणा भर भर के भरी हुई है बस मतलब समुद्र है करुणा का तो मतलब मेरे को तो यही अभी मार्च में जस्ट अभी रिसेंट ही इंसिडेंट है कि अभी मार्च में मैं गई थी जगन्नाथपुरी श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा पे तो मेरे को था कि मेरे को पता लगा कि गुरु महाराज वहां पे आए हैं है ना तो हम गुरु महाराज के जहाँ पे ठहरे थे गुरु महाराज मैं मेरा भाई जगदानंद पंडित दास जो कि इस्कॉन नोएडा से है उसी के मतलब साथ से ही मैं चल पा रही हूँ और बाकी मेरे प्रभु जी मेरी ये दोनों बेटियां हम सब गुरु महाराज जहाँ पे होटल में ठहरे थे हम वहां पे गई रात को 8-9 बजे हम पहुंचे पर गुरु महाराज मतलब हमें था कि 10:30 बजे तक आ जाएंगे बट गुरु महाराज नहीं आ पाए क्योंकि जब वहां पे जाते हैं गुरु महाराज कहीं भी जाते हैं तो डिवोटीज के ऐसे हो जाता है कि उनसे मिलना करना तो टाइम तो लगता ही है ना तो फिर हम वहां से वापस आ गए अपने रूम में जगन्नाथपुरी धाम में ही। अपने रूम में हम वापस आ गए तो नेक्स्ट फिर मेरे को बड़ा हुआ कि ओहो पता नहीं कब दर्शन होंगे दर्शन हो ही नहीं पाए हम लोग 2.5 घंटे वहां पे रिसेप्शन में बैठे भी रहे होटल में नहीं हो पाए चलो मैं भगवान से प्रे करती रही कि मेरे को गुरु महाराज के एटलीस्ट एक बार दर्शन हो जाए मतलब मेरा ये यात्रा जो है वो सफल हो जाएगी मेरे को यही लग रहा था फिर उसके बाद हमने रमन कृष्ण प्रभु का मैसेज आया कि गुरु महाराज इस्कॉन भुवनेश्वर भी जा रहे हैं तो हम हमारा नेक्स्ट डे एकादशी था और हमने इस्कॉन भुवनेश्वर में ही रुकना था वहां पे प्रोग्राम था यूथ का तो गुरु महाराज भी वहीं पे आ रहे थे हम वहां पे पहुंचे तो गुरु महाराज के ऐसे हम मतलब जब यूथ का प्रोग्राम हो गया तो मैंने मतलब अपने भाई से कहा जगदानंद पंडित से कि चलें और गुरु महाराज से ट्राई करते हैं है ना कि गुरु महाराज से मिल पाए मेरा बहुत मन है करने का मिलने का दर्शन करने का तो वो कहता कि ठीक है हम ट्राई करते हैं हम गए गुरु महाराज से उनके रूम के बाहर खड़े रहे काफी देर खड़े रहे तो पद्मारी प्रभु ने फिर हमें अंदर जाने के लिए परमिशन दे दी
तो हम अंदर गए, गुरु महाराज से मिले और उनके दर्शन किए, और उनका जो हंसमुख चेहरा है वो तो है ही है जो कि सब कुछ ही मतलब आप मतलब जो भी दुख दर्द होते हैं, मैं कहती हूँ सब कुछ भूल जाता है। उनकी एक स्माइल ही ऐसी है ना, उनकी एक मुस्कान जो है वो सब कुछ ही भुला देती है प्रभु जी। और फिर वहां पे हम बैठे रहे है ना, तो फिर मैंने गुरु महाराज को कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम मेरा फैमिली जो है भक्ति में आगे बढ़े, है ना। तो मेरे प्रभु जी थे, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम ऐसे गुरु महाराज को किया, जैसे गुरु महाराज का हैबिट है कि उन्होंने कोई भी प्रभु जी होते हैं तो उनकी ऐसे पीठ पे थापी देते हैं, है ना, थापी देते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा। तो गुरु महाराज ने एक बार थापी दी, मैंने कहा नहीं गुरु महाराज और दीजिए, ज्यादा दीजिए, भर भर के दीजिए तो गुरु महाराज इतने कृपालु है कि उन्होंने एक बार नहीं कितनी बार मेरे प्रभु जी के पीठ पर थापी दी। और मेरे को इतना, मैं कहती हूँ ओहो, ऐसा कौन कौन करेगा ऐसा, मतलब कौन हमारे ऐसा सुनेगा, है ना, कौन सुनेगा। ऐसे है गुरु महाराज, ऐसे गुरु महाराज है, कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु महाराज। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये इंसिडेंट था, और जो मेरे को सारी जिंदगी याद रहेगा, मैं इसे कभी भुला नहीं सकती, कभी भी नहीं भुला सकती। और भी हैं लेकिन टाइम शॉर्ट, और भी भक्तों को टाइम मिले। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, प्रणाम। इतना गुरु सुंदर महाराज की आपने जय, अपना परम पूज्य लोकनाथ जय स्वामी गुरु महाराज की जय। हरे जय, इतना सुंदर आपने अपना अनुभव, आप साक्षात्कार बताया कि किस प्रकार से, देखो गुरु हमेशा गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त ते करे या क्या आर ना करे हम मन आश। तो हम हर सुबह गुरु प्रार्थना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं कि गुरु जो है हमारे चित्त में है, हमेशा है। चित्त ते करे या क्या, तो हमारे एक ही अभिलाषा है, किस प्रकार से हम इस ऐसे विशेष अवसरों को हम जो है गुरु महाराज के साथ मिलें। और आपने कितना सुंदर सुनाया कि देखो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, इतना आसानी से गुरु नहीं नहीं मिलते हैं, हम सभी जानते हैं ब्रह्मांड नहीं ब्रह्म मिलते। ते जीव कौन भाग्यवान जीव। हाँ जी। तो कैसे जो है आपको जब पता चला कि आप भुवनेश्वर में महाराज चले गए हैं, तो हमें भी अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सोचते कि ठीक है महाराज अब चले गए हैं, तो अब मैं भी बाद में जब कभी महाराज मिलेंगे मायापुर में वृंदावन में तब मिलेंगे, लेकिन आपने भी अपनी इच्छा को प्रबल रखा और भगवान ने आपको गुरु से भेंट कराई। बहुत ही सुंदर ये अनुभव था, थैंक यू सो मच। ऐसे हरे अनेक कृष्ण। अनुभव भक्तों के हैं। तो मैं अब नेक्स्ट, थैंक यू सो मच माता जी। जो है नेक्स्ट थैंक अहमदाबाद यू, से माता थैंक जी यू हैं प्रभु जी। राजेश्वरी रुक्मणी। मोस्ट वेलकम माता जी। राजेश्वरी रुक्मणी माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। यस माता जी हरे अनम्यूट कीजिए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आ दंडवत रहा है प्रणाम मेरा माता आवाज, जी। आ रहा है प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी, आप ऑडिबल। हाँ 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 हाँ। प्रभु जी, महाराज जी से ऐसे तो मिलने का मौका तो नहीं मिला है, इतना नसीब भाग्यशाली तो हम है नहीं। महाराज को ऐसे बस जब शेल्टर लिया तब दर्शन किया था, बाकी महाराज से पर्सनल हम मिले नहीं। लेकिन ये इस बात का बहुत ही अंदर से रंज रहता है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि महाराज शेल्टर देते हैं ना तो सबको पर्सनली मीटिंग करते हैं, पर्सनल मिलते हैं। तो दीक्षा भी हो गया मेरा 1.5 साल हुआ। तो क्या हुआ, दीक्षा होने के 5-6 महीने बाद इतना इतना अंदर से पेन हुआ ना कि महाराज हमसे पर्सनली क्यों नहीं मिले, महाराज से मीटिंग क्यों नहीं हुआ हमारा। तो ऐसा सोच के प्रभु जी 3-4 दिन लगातार ऐसे रोते रहे महाराज की तस्वीर के सामने। फिर महाराज तो क्या, ये सुना है लेक्चरों में कि महाराज का हमेशा ब्लूटूथ ऑन होता है अपने शिष्यों के साथ। तो एक एक दिन महाराज क्या हुआ प्रभु जी पता है, रात को सोई ना, महाराज सपने में आए, और सपने में आके 5 से 10 मिनट तो मुझसे कुछ बातें किया, और फिर लास्ट में क्या बोले पता है, हाँ और मैं देखता हूँ तुम जपा टॉप में सो जाती हो माला करते करते। और ये हकीकत था प्रभु जी, उस टाइम मैं जपा करते करते सो जाती थी, माला करते करते सो जाती थी, जपा टॉप में बैठे महाराज के साथ सो जाती थी। तो अंदर से इतना हुआ ना प्रभु जी कि महाराज सुनते भी है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि महाराज सर्वत्र है, महाराज शिष्य कहीं भी हो, महाराज को हर शिष्य के बारे में पता रहता है, शिष्य क्या करता है क्या सोचता है। तो इससे ये पक्का हो गया विश्वास कि हाँ मेरे महाराज में कहीं भी रहो बात सुनते हैं, भले मीटिंग ना हुई लेकिन महाराज बात सुनते हैं, हमारे दिल की बात महाराज तक पहुंचती है। हम महाराज से डायरेक्ट बोले ना बोले लेकिन बात पहुंचती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। बस प्रभु जी यही प्रार्थना है आप सब वैष्णव भक्तों से बताओ। कि महाराज हमसे एक बार मिल सके, ऐसा आशीर्वाद दो बस कि महाराज से हम भी एक बार मिल सके, बस और कुछ नहीं। जब हमारी जैसे ऐसी तीव्र इच्छा होगी, क्यों नहीं, गुरु भगवान जरूर ऐसा संयोग बनाएंगे कि आप गुरु महाराज से मिल सकें। आपने कितना सुंदर ये बताया। मैं हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी कब ऐसा भाव आएगा कि गुरु महाराज की पिक्चर के सामने हमें ऐसे विलाप करें हम, जैसे आपने बताया। और किस प्रकार से गुरु महाराज आपको साक्षात्कार देते हैं स्वप्न में और बताते हैं कि जो है आप सो मत जब मैं, ये बहुत ही सुंदर अद्भुत था ये। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम जी से माता जी, राम भूमि देव। ओके, तो सुबह माता जी आप सुभद्रा। आप हैं कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुभद्रा देवी माता जी, सुभद्रा माता जी, क्या आप अपने जी आप को अनम्यूट कर हरे रहे हैं? ओके कृष्ण माता प्रभु जी जी। अनम्यूट। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे साथ भी महाराज का हुआ है एक बार। वही मेरा ऐसे ही, मैं एक्चुअली बहुत दिन से कौन से जुड़ी हुई थी, पर मुझे इतना ये नहीं पता था कि हम गुरु कैसे चयन, मतलब सब कुछ सुनती थी पर हमने मतलब गुरु नहीं चयन किया था अपने जिंदगी में। हाँ गुरु, फिर हमारे यहाँ ब्रह्मचारी रहते तो उन्होंने बताया कि हम प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से कि आपको जल्दी ही गुरु महाराज मिले। और सडनली ऐसा हुआ कि उसी दिन, मैं दिल्ली में रहती हूँ और महाराज एयरपोर्ट पे आए, तो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि आज गुरु महाराज आ रहे हैं। नहीं बोले, मतलब स्वामी महाराज चलिए मिलने के लिए। मैं सोचा हम भी ऐसे ही मिलने जा रहे हैं, मतलब नॉर्मली मिलने गए। और जैसे उनसे मिला तो ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं हम कहीं बहुत दिन से बिछड़े हुए हैं। एक होता है ना कि अपने माता पिता से कभी बिछड़े हो, बहुत दिन पे आप मिलते हो, उनको देखते ही मुझे ऐसा फील हुआ जबकि मुझे कुछ भी एहसास नहीं था कि कैसे गुरु चयन करते हैं, कैसे गुरु मिलते हैं। लोग सब बोलते थे कि हमें गुरु मिल गया, हमें गुरु, पर मुझे वो रियलाइज नहीं हुआ था, मतलब वो फील नहीं आ रहा था। जैसे उनसे मैं मिली, एयरपोर्ट पे मिली थी फर्स्ट टाइम, और उनको देखते ऐसे लगा कि मैं बहुत दिन से इनको मैं ढूंढ रही थी, मैं कहाँ थी, आज मुझे ये मिल गए। ऐसे लगा, मतलब अलग भाव में वो फील कर बैठी कि हाँ गुरु होता है, ये हम कैसे फील करते हैं। उसके बाद कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ कि उनका आईडीसी कोर्स हुआ मेरा, मैं एक ही बार में मेरा सिलेक्शन भी हो गया, गुरु महाराज से मैं दीक्षा भी हो गया। तो ये चीज मुझे अब कृष्ण समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे वो गुरु को चुनी, और कैसे मतलब जैसे मैं कहीं भटकी हुई थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, शास्त्र हमें बताता है कि गुरु के साथ, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद माता जी, आपने अपना साक्षात्कार सुनाया, बहुत ही सुंदर था ये। क्योंकि हम जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु के साथ जो हमारा जो मिलन होता है या फिर हमें जो गुरु प्राप्त होते हैं, वो
कोई भौतिक नहीं है ना। भगवान ही मदद करते हैं हमें गुरु से मिलाने के लिए, और हम गुरु के संपर्क में तभी आते हैं। बिना इस विशेष दिव्य योजना के ऐसा संभव नहीं है। और आपने बताया भी कि कैसे आपके अंदर ये जिज्ञासा हो रही थी, ये उत्कंठता हो रही थी कि कब मेरे जो है मैं गुरु महाराज के दर्शन करूंगी, और भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया भी, ऐसा संयोग बनाया भी कि महाराज जब एयरपोर्ट पे आए आपको सूचना मिली और आप महाराज के दिव्य दर्शन करने गए। थैंक यू सो मच। अभी भी कई सारे हाथ खड़े हो रहे हैं, वंडरफुल। तो अगले जो है रूपाली, रूपाली माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा तो इनिशिएशन भी नहीं हुआ है, ऐसे ही हमको भी पता चला। हम 2 साल से इस्कॉन से जुड़े हैं कि महाराज जुहू आ रहे हैं। हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मैं मेरी फैमिली के साथ, मेरे प्रभु जी और मेरी दोनों बेटियां प्रभु महाराज से मिलने गए। तो एट दैट टाइम 2 बज गए थे, और महाराज का किसी सन्यासी के साथ, मतलब भक्त के साथ मीटिंग चल रहा था। इवन उनका लंच टाइम भी ओवर हो गया था, फिर भी महाराज हम लोगों को मिले। हमको तो ये भी पता नहीं था कि महाराज से मिलने जा रहे हैं, तो माला लेके जाना है, प्रसाद लेके लेके जाना है। तो महाराज, हमें से कोई भी दीक्षित नहीं है, फिर भी महाराज हम लोगों से 15 मिनट मिले। और हम मुझे तो ऐसे लगा कि पता नहीं मैं मतलब कहाँ पे आई हूँ। महाराज हमारी तरफ देख के ऐसे लग रहा था कि हमारे आत्मा को स्कैन कर रहे हैं। मतलब इतनी अच्छे से बात की, इतने अच्छे से। और हमको प्रसाद का डब्बा भी दिया, गार्लैंड भी पहनाई। मतलब हम लोगों को इतने वैष्णव एटिकेट्स भी नहीं थे कि कुछ तो लेके जाना है इनको मिलने के लिए। और महाराज ने बहुत सारे ब्लेसिंग भी दी। और मेरे सब भक्तों से यही है कि मेरा जल्दी से जल्दी इनिशिएशन हो जाए, और ऐसे गुरु मुझे जल्दी से जल्दी उनके चरणों का आश्रय मिल जाए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय। बहुत ही विशेष आपका ये अनुभव था कि किस प्रकार से जो है आप महाराज से मिलने जाते हैं, और जो है आपकी भेंट भी हो जाती है, और महाराज इतना समय आपको देते हैं। तो काफी सुंदर ये रियलाइजेशन सेशन चल रहा है। कई भक्त मिल भी नहीं पाए हैं, महाराज समय भी इतना सुंदर दिए हैं। और जैसे कि आपने बताया कि गुरु कभी अपने शिष्य से अपेक्षा नहीं करता है कि मेरा शिष्य रिटर्न में मुझे क्या देगा, है ना। तो और बदले में गुरु हमें इतना कुछ देते हैं कि हम जो है हमेशा उनके ऋणी बन जाते हैं, पूरे जीवन भर गुरु के ऋणी बन जाते हैं कि के गुरु के द्वारा हमारे जीवन में लाया गया इतना बड़ा, सबसे बड़ा तो हमें कृष्ण दे रहे हैं गुरु। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। भगवान कृष्ण को हमें दे रहे हैं गुरु, तो हम पूरे जीवन भर उनके ऋणी बन जाते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे माता जी, जल्दी ही आपको गुरु की पूर्ण शरणागत प्राप्त हो, गुरु के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा आपको दीक्षा प्राप्त हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। और हमारे बीच और भी भक्त के हाथ खड़े हो रहे हैं। प्रज्ञा सक्सेना माता जी, आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अनम्यूट कीजिए माता जी। जी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। जी प्रभु जी, मैं दीक्षा तो मेरी भी नहीं हुई, और मैं बरेली से हूँ। तो जैसा कि ना, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, मेरे पास भक्त लोग कहते थे कि आप दीक्षा लीजिए, तो मेरा भी यही अंदर सवाल था कि मैं दीक्षा लूँ किससे, क्योंकि मैं अभी तक किसी मुझे महाराज जी से पर्सनली मिली भी नहीं हूँ, तो मेरे अंदर प्रेरणा कैसे आएगी। तो श्री भगवान का कृपा ही थी कि जगन्नाथ प्रभु जी से मैंने एक सवाल रखा कि मुझे कैसे गुरु मिले, और मैं कैसे किस गुरु से दीक्षा लूं। तो मैं एक दिन प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ रही थी, और उसमें जब प्रभु जी का नाम आया महाराज जी का, तो वो ये जो महाराज जी थे जिनका नाम मैं जानती थी, जिनको मैंने देखा था, क्योंकि बाकी तो किसी को नहीं देखा था। और तो तब मेरे मन में बहुत जल्दी प्रश्न उठा कि शायद मैं ये शायद यही जो महाराज जी हैं, इन्हीं इन्हीं के थ्रू मेरा आगे दीक्षा होगा। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो भाई हैं, उन्होंने महाराज जी से ही दीक्षा ली रखी है, और उन्होंने मुझे एक पेन गिफ्ट किया था जिसपे हिज गेस्ट लोकनाथ स्वामी महाराज जी का नाम लिखा हुआ था। तो जब वो मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इंडिकेशन है कि मुझे सही गुरु महाराज का चयन
करने में आसानी हो गई। और जब मैंने इस जगन्नाथ यात्रा के समय जगन्नाथ प्रभु से ये कहा कि मुझे अब महाराज जी से कैसे मिलना हो, क्योंकि मैं इतनी दूर रहती हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ज़्यादा यात्राओं में भी नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने देखा कि सेशन आने वाला सेशन में शायद महाराज जी खुद ही हम सेशन लेंगे ताकि उनसे वार्तालाप हो सके। तो मेरा और निष्ठा बढ़ गई कि मैंने सोच लिया कि ये शायद ही भगवान की इच्छा ही है कि जो प्रश्न मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं गुरु दीक्षा किससे लूं और कैसे मुझे गुरु महाराज मिलेंगे। मैं क्योंकि दीक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है, हम क्योंकि हमें हमारे अंदर निष्ठा और गुरु के प्रति शरणागत भाव भी होना चाहिए। तो जब ये चीज मेरे साथ हुई तो ये मेरा जो प्रश्न था ये मेरे अंदर से पूर्ण रूप से खत्म हो गया कि हाँ अब ये निश्चित हो गया कि अब मैं आने वाले समय में इस लोक स्वामी महाराज जी से ही दीक्षा ले पाऊंगी, क्योंकि उनका ही इंडिकेशन था कि जैसे कहते हैं कि जगन्नाथ प्रभु जी बहुत दयालु हैं और बहुत जल्दी सुनते हैं। तो ये एक चमत्कार ही था मेरे साथ, क्योंकि इतने दिन से मेरे मन के अंदर जो दीक्षा लेने का भाव था, एक डर सा था कि मैं कैसे लूं, क्योंकि महाराज जी से जिनसे हम मिल ही ना पाए कभी या जिनके में सानिध्य ना मिल पाए तो हम ऐसे कैसे दीक्षा ले लें किसी से, क्योंकि उनका मिलना भी बहुत जरूरी है। कभी तो हम उनसे मिल सके, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ जल्दी यात्राओं में। तो शायद ये एक इंडिकेशन था और उनकी कृपा भी थी और महाराज जी ने शायद मुझे खुद ही चुन लिया है कि मैं ही उनकी शरण में आऊं। तो यही छोटा सा मेरा अभी आंतरिक एक्सपीरियंस है प्रभु जी। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी मेरे अगर उनसे दीक्षा हो जाए तो मैं अपना दूसरा एक्सपीरियंस साझा करूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपका अनुभव भी बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार से जो है आपको लीलामृत से प्रेरणा मिला, महाराज का नाम सुना, महाराज के प्रति वो जो अटूट श्रद्धा प्रेम विकसित हुआ और कैसे रथ यात्रा में आपने जगन्नाथ महाप्रभु से, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया और आपको इतना सुंदर भेंट भी प्रस्तुत हुआ। तो काफी अच्छा है, आप काफी आपको ज्ञान है कि गुरु का चयन हमें कैसे करना चाहिए। कई बार भक्त ऐसे भी होते हैं, गुरु को जो है उनके इतने सुंदर साक्षात्कार होते हैं कि गुरु का चयन सुंदर तुरंत कर देते हैं। लेकिन आपका बहुत ही अच्छा है कि आप समय ले रहे हैं, आप अपने समय लिया, गुरु को जाना, उनसे अपना संबंध स्थापित किया और अब आपके अंदर वो उत्सुकता हो रही है कब वो दिन आए जब आपको जो है महाराज के हाथों दीक्षा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच। हमारे बीच और भी मैं भक्तों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास 9 बजे तक या हम 5-10 मिनट और भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसके बाद, अगर आपका ऐसा प्लेटफॉर्म पर आपको अपने जो है जीवन के विशेष अनुभव को साक्षात कराने का मौका मिल रहा है, आप जरूर इसमें भाग लीजिए। मंगल यमुना देवी दासी माता जी अहमदनगर से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इस माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को अगर आप हैं तो। अहमदनगर से मंगल यमुना माता जी, ओके। तो हमारे बीच और भी हैं, सत्यवती राधिका माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, महाराज जी के साथ मेरा भी एक साक्षात्कार है कि महाराज जी के अभी रिसेंट में 18 जनवरी को जब जुहू में महाराज जी का अभी संन्यास एनिवर्सरी बनाया था तो मैं भी उधर गई थी, लेकिन मैं बहुत घर से ही लेट हो गई थी और फिर मैं उधर छत पे पहुंचे, हम लोग जुहू पे मंदिर की छत पे बनाया था। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत लोगों का क्राउड था और कुछ भी मुझे तो दिख नहीं रहे थे। तो मैं ऐसे अंदर से नर्वस हो गई थी प्रभु जी, और मुझे लगा कि आज तो गुरु महाराज के दर्शन भी नहीं होंगे। तो ऐसे मैं अंदर से बहुत दुखी हो गई थी, यानी मुझे गुरु महाराज को देखना था, क्योंकि मैं वृंदावन में भी नहीं जा पाई थी, महाराज जी का 50 वजह से संन्यास था। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं गुरु महाराज के यहाँ पर तो दर्शन करूं, लेकिन बहुत ज्यादा क्राउड था और गुरु महाराज बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेरे को ऐसे आंखों से यानी आंसू और यानी मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर में मैंने देखा प्रभु जी कि महाराज जी आ रहे हैं और पीछे पीछे पद्माली प्रभु जी आ रहे हैं।
तो मैं इतना खुशी से बहुत यानी खुश हो गई। और मैंने जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किया प्रभु जी, तो गुरु महाराज ने अपनी आंखों से यानी मुझे देखा और मैंने गुरु महाराज को देखा। तो यानी कहते हैं ना कि गुरु तो किधर से भी आपको कृपा देते हैं, तो उन्होंने मुझे अपने नेत्रों से यानी कृपा दी। तो मैं बहुत 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 यानी ऐसे खुशी से झूम गई, डांस यानी ऐसा लगा कि मैं बहुत नाची हूँ यानी। तो यानी गुरु महाराज जैसे माता जी ने बोला ना कि गुरु महाराज आपके मन की बात को सुनते हैं, तो गुरु महाराज ने मेरे भी मन की बात सुनी प्रभु जी। और गुरु महाराज बहुत 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 दयालु है यानी। मैं एक बार ऐसे ही गुरु महाराज से एक बार मिलने के लिए गई थी, हमें कुछ काम था यानी नागपुर में डोनेशन देना था महाराज जी को। तो मैं महाराज जी के लिए एक थोड़ा कुछ बना के लेके जाना चाहिए, ऐसे माता जी ने बताया था कि आप कुछ भी स्वीट बना सकते हो महाराज जी को। तो मैं लेके गई ना, तो महाराज जी ने इतने सुंदर से लिया और बोला कि मैं अभी है ना जब ये संकीर्तन करके आऊंगा ना, तब मैं इसको ले लूंगा है ना। तो जिनके घर पे रुके थे उनसे बोला इसको रखना और मैं आके इसको ग्रहण करूंगा। तो प्रभु जी महाराज जी बहुत 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 दयालु और बहुत ही करुणा निधि है गुरु महाराज। प्रभु जी, हम मेरा मन में एक प्रश्न है कि हम गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यानी हम क्या करें शिष्य जो गुरु महाराज बहुत 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 प्रसन्न हो जाए। तो पहले तो आपने बहुत ही सुंदर अपना साक्षात्कार सुनाया माता जी, कि किस प्रकार से जो है आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी का जब महाराज के दर्शन होंगे, और कैसे आपने देखा कि गुरु महाराज पद्मावली प्रभु के साथ साथ जो है आ रहे हैं। आपका ये दर्शन धन्य हो गया, आपका वहां जाना सफल हो गया। और आपका जो प्रश्न है, वैसे मैं इतना उन्नत भक्त तो नहीं हूँ, जैसे कि आज महाराज बता रहे थे कि उन्नत भक्त का क्या लक्षण होते हैं, परंतु जैसे आपने जिज्ञासा किया ही है कि कैसे हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जो हैं, जिस भी आप मंदिर से जुड़े हैं, जिस भी आप समुदाय से जुड़े हैं, वहां पर भक्ति वृक्षा हो सकता है, भक्ति वैभव से जुड़े हैं, तो जो उनकी आज्ञा होती है ना, उनको पालन करके या मंदिर के अथॉरिटी का आज्ञाओं का पालन करके, तो महाराज तब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महाराज ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया है। जैसे भगवान गुरु को भेजते हैं अपना प्रतिनिधि बना के, तो उसी प्रकार से महाराज ने हर एक मंदिर में अपने प्रतिनिधि बनाए हैं। तो जब हम उनके जो दिए गए आदेश का पालन करेंगे, तो गुरु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमें हर बार गुरु से हम भेंट नहीं कर सकते हैं, हर बार मिल नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने चुने हुए अपने प्रतिनिधियों को अगर हम प्रसन्न करेंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान भी जरूर हमसे प्रसन्न होंगे। थैंक यू सो मच। और भी भक्तों का स्वागत है, जल्दी से अपने आप को जो है हैंड रेज कीजिए, ताकि हम आप लोगों को भी ये अवसर दे सकें गुरु महाराज के दिव्य गुणों का गुणगान करने के लिए। मंगला यमुना माता जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट हैं, आप बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा पहला तो अनुभव ये है कि मेरी शादी 2000 साल में हुई, और हमारे आइला नगर में इस्कॉन का मंदिर भी नहीं था। 1999 में पंढरपुर के कोई भक्त आए थे यहाँ प्रचार करने के लिए, और मेरे प्रभु जी, मेरे पति, उन्होंने गीता, भगवत गीता दी। तब शादी भी नहीं हुई थी, मुझे पता नहीं कैसे उन्होंने ली, क्या उन्होंने दी, कुछ पता नहीं मुझे। लेकिन 2014 में मैं भगवत गीता के श्लोक सीख रही थी, तो मुझे वो भगवत गीता हमारे घर में 2014 में मिली, और वो उसमें लेटर था पंढरपुर का। तब से मेरे हृदय में ऐसा कनेक्शन हुआ, वहाँ के पंढरपुर में ज्यादा आसक्ति लगने लगी हृदय से। और एक बार 2020 में मुझे यहाँ की माता जी ने पूछा कि आपको किससे दीक्षा लेनी है, तो मुझे पता भी नहीं था कि पंढरपुर में लोकनाथ महाराज दीक्षा देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि पंढरपुर में कोई देता है क्या दीक्षा, तो मुझे उन्हीं से लेनी है। तब उन्होंने मुझे उनका महाराज का नाम बताया, और तब से मेरा ऐसे जब से मैंने भगवत गीता हाथ में ली, तब से मेरे हृदय से ऐसा गुरु महाराज के साथ कनेक्शन हुआ था। और अभी अभी मेरा एक अधिक मास गया ना, अभी अभी मेरा अनुभव, मुझे गुरु महाराज से मिलना था। बहुत हृदय से ऐसा लगा था कि मुझे गुरु महाराज से मिलने, बस गुरु महाराज ने मुझे हरे कृष्णा कहा ना तो भी चलेगा, लेकिन मुझे ना गुरु महाराज से मिलना है। तो मैं उनके लिए लड्डू बनाए बेसन के, और चूड़ा बनाया। एक माता जी ने कहा उनको अदरक का चूड़ा बहुत पसंद है, और लेके गई मैं। तो मैं वहां गई पंढरपुर में, अभी मंगल आरती हुई,
श्रृंगार आरती हुई तो एक प्रभु जी बोले आपको उनसे मिलना है तो आप महाराज के रूम के पास बाहर खड़ी रहो, महाराज अभी आएंगे। तो मैं 8:45 वहां खड़ी रही एक माता जी के साथ। तो महाराज आए, इतना हृदय भर के आया और महाराज को प्रणाम किया और सिर नीचे रख के। और उनके साथ वो केशव प्रभु जी थे, उन्होंने बोला "आप बाजू में हटो, हटो बाजू में, महाराज को जाने दो"। तो मुझे बहुत बोलने का मन था लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन महाराज खुद मुझसे बोलने लगे। वो अनुभव मेरा कभी मैं भूल नहीं सकती। महाराज मुझसे बात की, आप कहाँ की है, आप मुझे, मैंने सिर्फ उनको यही बताया कि मुझे प्रचार करने को बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं ऐसा ऐसा थोड़ा सा प्रचार शुरू किया है। महाराज ने बहुत आशीर्वाद दिए और वो बोले बहुत अच्छा कर रही हो। और ऐसे महाराज खुद रुक के बोले, मुझे बहुत आनंद मिला। और सपने में भी जब मेरी दीक्षा भी नहीं हुई थी तब मुझे महाराज ने सपने में दर्शन दिया और मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो जपटक और सुबह 5 से पौने 6 सवा 7:30 बजे तक रहता है ना, तब मैं थोड़ा आधा पौन घंटा जाती थी। तो गुरु महाराज मेरे सपने में आए और ऐसे गुस्सा दिखाया गुरु महाराज ने कि आप जपटक छोड़ के बाहर जाती है। तो मैंने कभी ऐसा गुरु महाराज का कभी ऐसा चेहरा प्रैक्टिकली देखा भी नहीं। गुरु महाराज हमेशा हंसमुख रहते हैं, लेकिन मुझे सपने में वैसा चेहरा दिखा। तो तब से मैं हर रोज जपटक ज्वाइन करती हूँ, कभी छोड़ती नहीं, मिस नहीं करती। और और एक पिछली एकादशी में मैं व्यास पूजा में नहीं गई थी पंढरपुर, कुछ प्रॉब्लम था। तो बराबर एकादशी के दिन गुरु महाराज मेरे सपने में आए और ऐसा वहां जैसा पंडाल रहता है, गुरु महाराज स्टेज पे बैठते, वैसा ही मुझे दर्शन हुआ सपने में गुरु महाराज का सुबह सुबह 4 बजे। और मैं नींद से जगी तो मुझे लगा ये सपना था, मुझे सच लगा वो। और ऐसे मेरे गुरु महाराज के साथ ऐसा अनुभव है। और उनका दर्शन भी हर बहुत बार हुआ, लेकिन और खारघर में पिछली बार मैं खारघर गई थी, उद्घाटन था। वहां भी मुझे गुरु महाराज का दर्शन करना था, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी और कैसे गुरु महाराज से मिलूं, कैसे मिलूं, ऐसे मुझे मेरे मन में क्वेश्चन था कैसे मिलूं। तो वो गुरु महाराज सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो लिफ्ट से आ रहे थे और हम वो पायरी रहती ना उससे बहुत दौड़ के आई। गुरु महाराज मुझे समझा था कि गुरु महाराज नीचे गए हैं। तो मैं बहुत दौड़ के आई और लिफ्ट के गेट के सामने खड़ी हुई। तब महाराज, मैं गई और महाराज आए बाहर और मैं सिर रख के उनको प्रणाम किया। और महाराज का मुख उधर था, लेकिन उन्होंने मुझे देखा, पीछे देखा और मुझे स्माइल किया और थोड़ी देर रुके। और मेरे अनुभव में से कभी नहीं भूल सकती। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य आपके साक्षात्कार हैं, अनुभव हैं कि किस प्रकार से महाराज के अलग अलग प्रकार से आपको हिंट देते हैं और आप उनको समझ भी जाते हैं। कई बार महाराज हमें पता नहीं कितनी बार हमें बोलना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते महाराज के मूड को, महाराज के भाव को, महाराज के वचनों को। लेकिन विशेष कृपा है आपके ऊपर कि किस प्रकार से महाराज आपको और गंभीर बनाना चाहते हैं और विनम्र बनाना चाहते हैं। जैसा आपने बताया कि आप पार्क में जाकर के जपा करते थे, लेकिन महाराज ने बस आपने समझ लिया कि महाराज चाहते हैं कि नहीं, पार्क में नहीं, आपको हमेशा डेली बेसिस पर जप करना है। और आप वो कंटिन्यूटी बनाए हुए, निरंतरता बनाए हुए हैं और आप प्रत्येक दिन विदाउट फेल आप जप कर रहे हैं, जपा टॉक पर, जपा मॉर्निंग में। बहुत ही सुंदर है। ऐसे अनेक साक्षात्कार गुरु महाराज के साथ हमारे होते ही रहते हैं। जैसे कि आप महाराज की मुस्कुराहट के बारे में बात कर रहे थे कि जब हम अपने गुरु महाराज की बहुत ही सुंदर जो है उस छवि को, मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं, तो हमारा जो हृदय है जो कि भौतिक ताप से जल रहा है वो बहुत ही ठंडा हो जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत ही प्यासा रहता है, बहुत चला हुआ है, बहुत प्यासा है, काफी पसीना आ रहा है, और अगर जैसे कोई उसको ठंडा पानी पिलाता है तो उस व्यक्ति की न सिर्फ जो है प्यास मिटती है, उसको बहुत ही ज्यादा जो है सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जब हम गुरु महाराज के ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे को जब हम देखते हैं, ऐसी मुस्कान को देखते हैं, तो हमारे हृदय में भी जो कि हमेशा तापों से जल रहा है ठंडा हो जाता है, उसमें निर्मलता, शीतलता आती है। ऐसे अनेक गुणों के खान है हमारे परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज। इसी बीच रामवती माता जी कानपुर से वो हैं, वे भी अपना अनुभव बताना शेयर करना चाहते हैं।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। और भी अगर कोई भक्त है जो कि चाहता है कि मुझे भी अवसर मिले अपने गुरु महाराज के जो है, या हो सकता है कि अभी दीक्षित नहीं है या दीक्षित है, कोई भी अनुभव हो सकता है, आप जरूर जो है ये अनुभव शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी। हरे प्रभु कृष्ण। जी माता जी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग लास्ट ईयर पंढरपुर धाम गए थे, तो वहां ये पता था हमें कि गुरु महाराज जो है पंढरपुर धाम में है। और महाराज के दर्शन करने के लिए मतलब इतनी इतनी करुणा भर रही थी, इतना मतलब लगा था एक बार हो जाए। 12 बजे रात को हम पहुंचे, हमें तो लगा था रात के शायद 12 बजे हम महाराज के दर्शन हो जाए, पर ये तो पॉसिबल नहीं था। तो जब हम लोगों को रूम मिल रहे थे, तो गार्ड हम लोगों को जैसे हमारे रूम तक ले गया, तो हमने उनसे पूछा कि महाराज कहाँ रुके हैं। हम मतलब कुछ समझ में नहीं आता, फर्स्ट टाइम पंढरपुर गए थे। तो तो हमने कहा मंदिर के पास आए थे, तो हमें कुछ वहां समझ में नहीं आता कि महाराज किधर रुके हैं। तो उन्होंने बताया, जब वो ले गए कि जहाँ आपका रूम है वहीं पर प्रभुपाद हाउस है, वहां पर महाराज रुके हैं। अब तो प्रभु जी वहां जाके मतलब वही निगाहें बस महाराज को देखने के लिए मतलब इतनी मतलब हो रही थी, परेशान हो रहे थे इतना। फिर पूरी रात प्रभु जी हमें नींद नहीं आ रही। फिर रात के 12 बजे पहुंचे कि अगले दिन हो सकता है मंगला आरती में, जैसे महाराज वहां जपा में बैठते, तो अगले दिन महाराज का जपा करेंगे, मंगला आरती में हम लोग शामिल होंगे। तो पूरी रात नींद, हम रात के फटाफट एकदम मतलब 2-2:30 बजे ही, मतलब सोए नहीं पूरी रात। रात को 2-2:30 बजे मतलब मैं तैयार हो गई मंगला आरती में जाने के लिए। और मुझे वहां से वहां तक फर्स्ट टाइम जाना है, लेकिन कोई डर नहीं, कुछ नहीं, भागती भागती मतलब 3:30 बजे हम वहां पहुंच गए। मैं पहुंच गई मंदिर के पास, और तो वहां पर मतलब कोई नहीं आया हुआ था, तो बाहर बैठ के ऐसी जपा करने लगे। फिर जब मंदिर के अंदर जब प्रवेश किया, फिर निगाहें बस महाराज को ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन महाराज ने दर्शन नहीं दिए प्रभु जी। और इतनी करुणा, मतलब आंसू निकल रहे कि महाराज के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, महाराज दर्शन नहीं दिए। फिर अगले फिर अगले दिन प्रभु जी हम लोग मतलब उस दिन फिर हम लोग पंडरीनाथ के दर्शन हुए हम लोगों के। फिर अगले दिन शाम को महाराज ने टाइम दिया कि अगले दिन मैं 5 बजे शाम को मतलब सब भक्तों से मिलूंगा, जितने भी कानपुर के भक्त आए हैं। तो प्रभु जी बस मन नहीं लग रहा था, लग रहा था बस एक नजर बस अपने महाराज को देखे हम, बस मतलब वहां जाके भी मतलब बस महाराज को देखने की इतनी मतलब इच्छा तीर हो रही थी। बस महाराज जैसे आए तो प्रभु जी मतलब महाराज ने इतनी मतलब करुणा भरी दृष्टि से देखा मेरी तरफ, तो आंसू निकल रहे थे मेरे। और मैं मतलब यही बार बार सोची, मेरे दिल में यह था कि अरे मैं पंढरपुर धाम रुक जाऊं, पंढरपुर। तो मैंने अपने प्रभु जी से आप फोन पे भी कहा कि मेरी तो इच्छा नहीं, मैं तो पंढरपुर धाम ही रुक जाऊंगी। अब मैं मतलब ऐसा लगता है मैं अपने पिता के पास आई हूँ, गुरु महाराज जी के पास। तो प्रभु जी महाराज ने ऐसे कहा, महाराज ने कहा आपका मन है तो आप यहाँ पंढरपुर धाम रुक जाइए ना। अब महाराज का बस इतना कहना था प्रभु जी। इतनी मतलब आंसू निकले, इतने आंसू निकले, मतलब महाराज ये लगा कि महाराज मेरे दिल की बात जानते हैं। और महाराज ने वही शब्द कहे कि आपका है। और महाराज ने मेरी तरफ भी देखा, इतने भक्त थे, महाराज ने मेरी तरफ भी देख के कहा। फिर वहां पर बताया गया कि सब शिष्य जो हैं वो आए, और महाराज के मतलब जो जो महाराज से दीक्षित है वो महाराज के पास आए, महाराज के पास आकर बैठे, महाराज से जो पूछना। तो फिर प्रभु जी फिर महाराज ने एक करुणा भरी दृष्टि से देखा, और वो महाराज मुस्कुराए देख के। फिर हम लोग फटाफट भाग के महाराज के पास गए। तो सब लोगों ने सुने महाराज का जैसे पंडरीनाथ से चरण छुआते हैं, तो ऐसे मतलब महाराज के हम लोग मतलब सब मतलब कहने लगे कि और भक्ति की जैसे पंडरीनाथ के चरण छूते हैं, ऐसे यहाँ पर आए हैं तो पंडर धाम तो महाराज के सब चरण छुएंगे। महाराज की आज्ञा है आपकी। तो महाराज ने आज्ञा दे दी चरण छूने के लिए भी सबको, तो माताओं को भी और प्रभु जी लोगों को। तो महाराज में तो इतने करुणा में है प्रभु जी। फिर वो मतलब ऐसा लग रहा था प्रभु जी, फिर हमें पुणे आना था, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी हम पंढरपुर धाम छोड़ के और अपने महाराज को छोड़ के आए। मतलब विठल तो करुणामय है ही है, लेकिन हमारे महाराज भी बहुत करुणामय है। तो फिर सुबह जो फिर सुबह मंगला आरती में महाराज ने फिर दर्शन दिए। फिर जब हम लोग हमारी बस खड़ी थी तैयार पुणे जाने के लिए प्रभु जी, तो महाराज ने जब तुलसी आरती हो रही थी, महाराज मतलब परिक्रमा कर रही थी, माताएं कर रही थी। फिर महाराज ने जैसे सब लोग अपनी बस की तरफ जाने लगे, लेकिन मैं सोची थी जब सब निकल जाए, लेकिन मैं महाराज को बस देखती रहूं। फिर महाराज ने मेरी तरफ देख के फिर हल्का सा मुस्कुराए महाराज। लेकिन प्रभु जी मैं वो मतलब आज तक भूल नहीं पाती हूँ कि मतलब मैं पुणे तक रोती आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि सब लोग मत सोच रहे कि पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। मतलब वो ऐसे लगा मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पर। मतलब पंडरीनाथ तो है ही, लेकिन मतलब अपने महाराज के प्रति इतना था कि मैं महाराज को छोड़ के क्यों जा रही हूँ प्रभु जी। बहुत ऐसी बहुत सी और भी बातें प्रभु जी, और इतने महाराज करुणामय है कि डेली महाराज जपा टॉक में आते प्रभु जी। अगर महाराज के दर्शन नहीं हो तो उस दिन बहुत बेचैनी होने लग जाती है। मतलब महाराज के दर्शन तो डेली करने ही है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। जय कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे विशेष अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। कितने सारे अनुभव। देखो, गुरु हमें हमारी इच्छा को जानते हैं, हमें क्या चाहिए या कब महाराज को हमें, किस समय हमें महाराज की बहुत आवश्यकता है। महाराज हमारे हर भाव को, हर इच्छा को जानते हैं, और उस प्रकार से जो है गुरु महाराज हमारे साथ आदान प्रदान भी करते हैं। जैसे आप बता रहे थे कि किस प्रकार से महाराज एक दिन आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। रात को पंढरपुर जब भी हम यहाँ से भी जाते हैं तो हम रात के 12 बजे ही जो है पहुंचते हैं, और अगली सुबह मंगल आरती भी हमें अटेंड करनी होती है। तो भक्तों की सबसे ज्यादा उनको जो जो चीजें जो प्रतीक्षा करनी होती है वो होती है गुरु महाराज की। कब वो सुबह का समय आए, गुरु महाराज हमारे सामने हो और हम महाराज के दिव्य दर्शन, दिव्य छवि के दर्शन कर सके। बहुत ही सुंदर ये आपके जो है साक्षात्कार रहे, जो है अनुभव आपने शेयर किया। आपने बताया कि किस प्रकार से जब आप पंढरपुर से पुणे जा, लोग घर जाने के लिए सोचते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो 2-3 दिन में ही हमें लगता है कि बस कब घर का टिकट कटेगा, कब ये यात्रा खत्म होगी, हम घर जाएंगे। लेकिन कितना अद्भुत है आपका, आपके साथ, कि आप बस ये इंतजार कर रहे थे महाराज बोले कि छोड़ो अपना स्थान को, रह लो पंढरपुर में, और आप तो तैयार भी थे। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आसान नहीं है जैसे ऐसा करना या सोचना। ऐसे विचार भी नहीं आते लोगों के, लेकिन आपके अंदर ऐसे विचार आए। गुरु के प्रति इतना समर्पण, इतना जो है इतना सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर है माता जी। थैंक यू सो मच। कोई भक्त और है जो अपने कोई रह गया हो, या याद कर रहा हो, या याद कर चुका हो, या याद आ गया हो कि हाँ मेरे साथ भी तो गुरु महाराज के ऐसे सुंदर जो आदान प्रदान हुए थे, मैं मुझे बताना चाहे तो कोई है आप में से? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने सत्र को यहीं पे विराम देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। साथ ही क्षमा भी मांग, ओके, एक और मंगल यमन माता जी, लग रहा है कि और याद आ रहा है। जय माता दी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे एक बात याद आई। जय माता जी, क्यों नहीं। गुरु गुरु महाराज मेरे सपने में आई ना, पिछली एकादशी में, तो महाराज ने मेरे साथ एक बात की कि मेरा नाम लेके आप में ना रामायण का क्लास शुरू करो। तो मैंने इधर उधर देखा, बहुत भक्त थे ना सपने में, वो गुरु महाराज की व्यास पूजा थी। मैंने इधर उधर देखा तो महाराज ने बोला मंगल ये होना आप। तो महाराज ने मेरे साथ ऐसे बात की, तो वो सपना में ऐसे बोले महाराज, तो प्रैक्टिकली हमने करना चाहिए क्या? दोबारा बोलेंगे माता जी, मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया। अ, अ, मुझे सपने में महाराज ने मेरे साथ बात की कि आप रामायण का क्लास करो। अच्छा, क्लास देना अभी शुरू करो। नहीं, पता नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोले सपने में अच्छा शुरू करो। ओके, दूसरा तो देखो, खुद को कुछ हाँ जी, तो आप महाराज देखो, जब जो प्रभुपाद के गुरु महाराज को पूछा गया कि प्रचार कौन कर सकता है, उन्होंने ये बताया कि जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार कर सकता है। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज ने अपने पूरे जीवन को ही न्यौछावर कर दिया, किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार हो, किस प्रकार से शिल प्रभुपाद ने, जिन्होंने अपने अंतिम समय तक भगवान की शिक्षाओं का, भगवान के वचनों का प्रचार प्रसार किया, वो प्रचार करें। उसी प्रकार से गुरु महाराज भी चाहते हैं कि उनके सारे शिष्य या बनने वाले, भविष्य के होने वाले शिष्य, कि इस आंदोलन का, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करें। वो तो गुरु महाराज का प्रत्येक शिष्य से महाराज चाहते हैं कि वो प्रचार करें। तो इसी में ही आपके लिए भी एक, सबके लिए ये संदेश है कि वो प्रचार करें, प्रचार के साथ, जैसे हमें प्रचार, किसी ने प्रचार किया है और आज हम इतना सुखी जीवन जी रहे हैं, हम ऋणी हैं प्रभुपाद के, गुरु परंपरा के, भगवान के, गुरु महाराज के। उसी प्रकार से हमारा भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि इस संसार के जो बाकी जीव हैं, जो कि भूल चुके हैं भगवान को, या भगवान के साथ संबंध अपना बिछुड़ चुके हैं, तो कैसे उनको भगवान के साथ जोड़ा जाए, कैसे उनको, उनके जीवन में भी हम गुरु को प्रवेश कराएं। तो ये हमारे लिए महाराज सब महाराज चाहते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें सहयोग कर सकें और भक्तों को। जी माता जी, शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए प्रचार शुरू
अभी भगवत गीता पूरी हो गई। कुछ लोग को इस्कॉन के बारे में पता भी नहीं था, अब वो जप करने लगे हैं। और भगवत 3 साल हो गए, पिछली अधिक मास से शुरू किया था प्रचार। जय अभी जय जय। भगवत गीता पूरी हुई। अभी कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम बुक है ना, जी माता जी। वो चालू है। अभी हम्म, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चालू है। बहुत ही सुंदर है, आपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं आप, बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से ये सबसे बड़ा परोपकार है जीवों के ऊपर, कि कैसे हम उनको जो है मुक्त कर सके, उनको इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर के से मुक्त कर सके। और आप काफी आगे इसमें बढ़े हुए हैं, बहुत सुंदर है। कोई भी लोगों को देखो ना, तो वो कैसे भी हो, गुस्से वाले हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको हृदय से ऐसे बताने का मन करता है। उन्होंने नहीं बोला तो भी मुझे चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे कोई कोई माता जी बोलती है कि उन्होंने नहीं बोला तो आपने उनको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ भी बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा हृदय से यही भाव है कि मैं उनको बताऊं। वो सुनो या ना सुनो, मेरा फर्ज है उनको सुनाना, उनको बताना भगवान के बारे में, गुरु महाराज के बारे में, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, कहाँ जाना है। ये हमारा फर्ज बनता है कि उनको बताना। हाँ जी माता जी, वैष्णव जो होते हैं वो पर दुखी होते हैं। वो जानते हैं कि लोग दुखी हैं, भले ही वो भारी आवरण उन्होंने लगा रखा है सुखी होने के, वो जो है इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता में है दुखी। क्योंकि जब तक हम भगवान से दूर हैं, कैसे हम सुखी हो सकते हैं इस भौतिक संसार में, संभव ही नहीं है। लेकिन भक्त बहुत अच्छे से जानता है ये लोग दुखी हैं, भले ही उनको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए भक्त क्या करता है, बिना किसी मान सम्मान के या बिना किसी भय के अभय निडर बनता है और लोगों को प्रचार करता है। फिर उसको ये नहीं दिखता है कि सामने वाला मेरा मुझे स्वीकार करेगा या फिर क्या बोलने वाला है, मेरे साथ कैसे व्यवहार करने वाला है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं करता है और भगवान के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है। बस लगे रहिए माता जी। और से भी निवेदन है, तो हमारा समय हो चुका है। आप सभी वैष्णव भक्तों का वैष्णवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। इस सत्र में बने रहने के लिए गुरु महाराज के बहुत ही सुंदर ये सीरीज चल रही है प्रभुपाद रत्न, और आप सभी से निवेदन है आने वाले शिक्षक क्लासेस में जरूर भाग लीजिए। साथ ही जो है सुबह जपा होता है, आप सभी उसमें आते ही होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।